Hello, everyone. Welcome to our webinar for today. We have with us today Sri Pavan Kumarji, who is a Metropolitan Magistrate and is currently the Secretary in the East Delhi Legal Services. Today, we've picked up this topic. Actually, it was suggested by him, though. And, we've picked up this topic because we really need to start talking about social issues that plague our society. We have issues such as acid attacks, which is at times talked about. We hear about a victim, we go, we do candle march, we feel sorry for them. But do we really ever think what happens to them after that? How are they even rehabilitated? What is the process? The purpose of criminal justice system in our society is to protect the rights of the society, state from the criminals by punishing the accused. But what we do not realize that the system is so wired that the focus is always on the offender, his arrest, his bail, his trial, his conviction. But we always forget about the victim. The victims are left to fend for themselves, their right, their dignity, their mere right to life. Why don't we think about those things? Have we ever thought? Have we stopped to ponder over the aspect as to what is victimology, victim compensation? In a very simple sentence, I will say, हम कभी नहीं सोचते हैं इस चीज के बारे में. Every time, हर बार हम इस चीज को देखते हैं, हम आपस में बात करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए था, इन चीजों के बारे में बात मत करो, ये डिस्कस मत करो, उसके साथ बहुत बुरा हुआ. अगर इसके आगे हम कभी कुछ डिस्कस ही नहीं करेंगे, सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? हम कैसे बताएंगे कि क्या इश्यूज आते हैं? टुडे श्री पवन कुमार जी will talk about the aspects that victim rehabilitation कैसे होता है, उनको क्या क्या देखना पड़ता है, and more importantly, actually the most important aspect he'll discuss in my opinion is how does the court, prosecution, as well as the police, the society deal with these victims. We have never been able to gather into our heads as to what affects them. I've seen so many posters, I've seen so many, progresses about all these things. We make WhatsApp groups, our, actors, actresses, the Bollywood comes along. Everyone prays for them, everyone talks about them. But I don't think so that we have a proper victim compensation system when it comes to the criminal law in our country. We've had a series of webinars till now. We've talked about commercial issues. We've talked about some social issues as well, or I would say issues of more importance, like we talked about domestic violence, especially in the wake of COVID-19 with Geeta Luthra ma'am. That was a brilliant session. We learned a lot about that. She's joining us again on this Friday on rape laws. How evolved are rape laws in our country? What are we lacking? What is the system missing? We really need to start talking about these issues. We can't keep ourselves focused on just arbitration, mediation, and litigation all the time. I'm a practitioner. I know it's very important to promote oneself and do commercial aspects. I do it myself. But then we really still need to focus on social issues. We really need to add value. And that is why I'm actually glad that I have a perfect partner with us, Lawyers Club India, which has been focusing. They've been, dealing with me. They've been very patient with me in getting the speakers, in arranging people, in arranging topics. Raghav, who's the assistant editor, who's my co-moderator today, is a brilliant budding lawyer today. He has helped me through everything. They have made it possible today that we can reach out to so many people and conduct such webinars. Well, Raghav, if you could introduce yourself and Lawyers Club India, please. Sure. Thank you so much, Gaurav sir, and very rightly said, the session that we have today and we are going to have in future. These sessions are not only important academically, but they are important as a duty for us, for all the lawyers who are related to the legal field. We need to feel that this is our duty to talk about it, to spread the awareness, to get it in our hands and make the teeth bite harder. Now it's time, I guess. So introducing Lawyers Club India. Lawyers Club India is a website per se, and
it's a legal knowledge sharing platform. It's the largest community online that we have in India, and probably the oldest one. So we deal in various modules. We have most primarily we have forums where you all can visit and you can have free legal advices from the experts that we have. We have around 1,25,000 on our on board, and then we have articles that we publish. We have judgments that you can access very easily, understandable they are, and then we have news and updates regarding to the legal field. We also have various competition. We have courses that you can enroll yourself in, and we also are organizing these webinars so that we can add fiber to our add quality fiber to the legal community. So today's topic, we have learned judge Pavan Kumarji coming for the session, and without taking much time, I'll hand it over again to Gaurav and then to Pavan sir. Thank you so much, Raghav. Thank you for the introduction. So I will just briefly introduce Sri Pavan Kumarji. As I've told you, he is a Metropolitan Magistrate and he is currently the Secretary for the East Delhi Legal Services. I approached him with this topic and he readily agreed to talk about something. And when he suggested this topic, we agreed in a heartbeat. Because coming from a judge who's been dealing with such issues, who sees these things days in, day out, from legal services point of view, from lawyers' point of view, from the prosecution's point of view, and most importantly, from the point of view of the judge who has to be, he has to listen to everything, he has to see everything, and then he needs to find a method as to he can actually do justice. He will briefly talk about the Nirbhaya gang rape case and his experience in recording that statement. Pavan sir, if you could please start. Sorry, seems like we have, yes. Thank you, sir. Please start. Thank you, Gaurav. Good evening, Gaurav, your team, Lawyers Club India, and all the respected participants who are on Zoom, Facebook Live, and a lot of other social media platforms. गौरव, जैसे तुमने मेरे टॉपिक के लिए, मेरे लेक्चर के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, दैट थैंक्स फॉर दैट. मुझे अरविंद इज माय कलीग, अरविंद जी ने मुझसे कहा कि आपको एक वेबिनार करना है और आप टॉपिक सजेस्ट कीजिए. तो टॉपिक सजेशन के टाइम मेरे दिमाग में एक चीज़ आई. मैं एक बार में गया हुआ. बार मीन्स एडवोकेट बार, नॉट इन दिल्ली, एट माय नेटिव प्लेस. क्योंकि बार में जब आप जाओ तो बेसिकली जजेस, अगर आप नेटिव प्लेस के बार में जाएं, किसी दूसरी बार में जाएं, तो वहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है. क्योंकि बार में एक एग्री करेंगे कि बार में कुछ चीज़ें हैं, जैसे बार की चाय, बार में पॉलिटिक्स, बार में लीगल डिस्कशन, और जजेस के बारे में अच्छी बुरी सारी तरह की फेयर क्रिटिसिज्म, यू कैन कॉल इट. उसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको एक अच्छा फर्स्ट हैंड क्रिटिसिज्म मिल जाता है. अगर क्रिटिसिज्म ऑनेस्ट और फेयर हो तो दैट ऑलवेज लीड्स टू इम्प्रूवमेंट. वो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आता है. तो वहाँ मैं बैठा था, तो वहाँ एडवोकेट कुछ लीगल डिस्कशन कर रहे थे, लाइक एमएससीटी केसेस, कि भी एमएससीटी में दिल्ली में क्या चलता है, दिल्ली में कैसे एमएससीटी के केसेस डिसाइड होते हैं. बात करते करते उन्होंने मुझे पूछा कि सर अनट्रेस केसेस में क्या करते हो. मैंने कहा अनट्रेस, मैंने कहा आपके यहाँ कोई विक्टिम कंपनसेशन स्कीम अनट्रेस केसेस के लिए नहीं है. तो उन्होंने कहा कि ऐसी भी कोई स्कीम होती है. तो उन्होंने मुझे फिर पूछा कि उस स्कीम में क्या है. मैंने कहा उस स्कीम में अगर अनट्रेस केस है तो 3 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का डेथ के केस में क्लेम मिलता है. इंजरी के केस में 50,000 से 5 लाख रुपए तक का क्लेम है. तो अल्टीमेटली उनके लिए भी इट वाज काइंड ऑफ शॉक एंड सरप्राइज, and it was also shocking and surprising for me. Even lawyers were not aware about victim compensation scheme. That is very shocking for me. This was the reason I suggested this topic to Arvind ji, and thank you कि you agreed to this topic. अभी जो आपने इन्विटेशन भेजे और जैसे आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया,
कि द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हु रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट ऑफ निर्भया अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी। तो मुझे नहीं लगता कि किसी मजिस्ट्रेट के लिए कोई इंट्रोडक्शन हो सकता है कि भी 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, कोई अच्छा लैंडमार्क जजमेंट डिसाइड किया हो, दैट कैन बी अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। क्योंकि एक मजिस्ट्रेट जितने 5 साल 7 साल जो मजिस्ट्रेसी में रहते हैं, तो वो मुझे लगता है कि 1000 के आसपास, मोर देन 1000 के आसपास वो 164 रिकॉर्ड करते हैं। बट दिस वाज अ यूनिक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर मी। आई जस्ट वुड टेक 5 to 7 minutes कि हाउ दिस स्टेटमेंट इज यूनिक। ये स्टेटमेंट मेरे लिए इंट्रोडक्शन कैसे बन गई। इस केस में, निर्भया केस में, यू ऑल नो कि द लैंडमार्क दिल्ली गैंगरेप केस, unfortunate incident had happened, gang rape case. I was asked by the SHO कि सर एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी है। जनरली रात को 9 बजे SHO फोन नहीं करते कि सर को 164 रिकॉर्ड करानी है। देन आई केम टू नो कि निर्भया की स्टेटमेंट है। देन आई एग्री। और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे नहीं पता था कि विटनेस या विक्टिम बोल नहीं पाएगी। एंड इट वाज रियली ए सरप्राइज फॉर मी कि विटनेस बोल नहीं पा रही है। डॉक्टर ने ओपिनियन दिया कि विटनेस विल नॉट स्पीक बिकॉज there is a pipe in place in endotrachea। जब हम 164 रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे लिए एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट है, हमें जो जज करना है फर्स्ट कि वेदर कोग्निटिव फैकल्टी ऑफ विटनेस इज वर्किंग और नॉट। अगर मेंटल फैकल्टी ठीक से काम कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रहा है विटनेस, तो हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट हैज ओपाइन कि यस कि द विटनेस इज रिस्पॉन्डिंग थ्रू नॉन वर्बल जेस्चर्स। ये हमारे लिए नया कंसेप्ट था कि नॉन वर्बल कि लड़की बोल नहीं पाएगी। देन आई प्रोसीड। आप एक चीज मान के चलिए कि जिंदगी में बहुत मौके आएंगे और कहते हैं कि एडवर्सिटी ब्रिंग आउट बेस्ट आउट ऑफ यू। लेकिन जिंदगी में दोराहे आएंगे जब आप तो दो रास्ते मिलेंगे या काम करने के दो तरीके होंगे। एक तरीका वो होगा जो बड़ा ट्रेडिशनल है, जो सभी फॉलो करेंगे। एक वो रास्ता होगा जिसको छोड़ के आप कोई नया इनोवेटिव आइडिया सोच सकते हो। विटनेस अगर नहीं बोल पा रही है तो देन व्हाट कैन आई डू। देन आई फ्रेम द होल स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैंने एमसीक्यू तैयार किए। उन एमसीक्यू में मैंने उनको ऑप्शन दिए एंड विटनेस को मैंने कहा कि आप राइट ऑप्शन पे सिर्फ फिंगर रेज करेंगे। कि जैसे मैंने उनसे नाम पूछना है कि आपका नाम क्या है, तो मैं उनको 3 नाम बताऊंगा जिनमें से एक नाम ठीक होगा और वो करेक्ट ऑप्शन पे अपनी फिंगर रेज करेगी 1, 2 और 3 एंड आई विल राइट द आंसर जस्ट लाइक दैट 1, 2 और 3। And fortunately for me, the whole statement, the whole story of prosecution was recorded in multiple choice question, and I'm really happy that has been upheld till Supreme Court. It was a good experience for me. I think the tone of the program is set. Now I can proceed with the topic for today. Topic is victim compensation. जब भी हम बात करते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, तो जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करेंगे तो बेसिकली हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर स्टेक होल्डर जो पूरी सीआरपीसी में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कहीं जिसके बारे में बात होती है, दैट इज द एक्यूज और ऑफेंडर। सेकंड, प्रोसिक्यूशन, डिफेंस, कोर्ट एंड लास्ट इज करेक्शनल ऑफिशियल लाइक जेल एंड ऑब्जर्वेशन होम। इन पूरे के पूरे स्टेक होल्डर्स में हम एक जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है जिसने इस क्रिमिनल लॉ को स्टार्ट किया, जिसने इंफॉर्मेशन दी, जिसने आगे आके कंप्लेंट की, उसको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। That is why this victim compensation and victimology evolved over a long period of time. अगर victim की हम बात करें तो victim is a person who suffered loss or damages like physical, mental, economic. हम बात करते हैं victimization की। जब कोई victim victimize हो रहा है, that is the victimization. अगर हम victimization की बात करें तो mainly दो तरह का victimization हो सकता है। Primary victimization in the hands of culprit, जब उसको कोई नुकसान हुआ, उसको कोई डैमेजेस हुए, चोट लगी, फाइनेंशियल लॉस हुए। एंड सेकंड विक्टिमाइजेशन इज सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन। सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन स्टार्ट होता है क्राइम कमिट होने के बाद। एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट कि सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन कैसे
secondary victimization at the hand of police, prosecution, court, defense, all. अगर हम विक्टिमोलॉजी की बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से एक डेफिनेशन लें कि विक्टिमोलॉजी क्या होती है, विक्टिमोलॉजी इज द रिलेशनशिप ऑफ विक्टिम एंड एक्यूज. इट इज एन interaction of victim with the criminal justice system, and it is an implied relationship with social group, institution, media. हम विक्टिम को सिर्फ कल्प्रिट या पुलिस या कोर्ट के भरोसे नहीं छोड़ सकते कि विक्टिमाइजेशन सिर्फ वही होता हो. अगर हम जैसे धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे होगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं पहले, जो डीएलएसए में आने के बाद मेरे साथ हुआ. मेरे पास एक विक्टिम आती है, विक्टिम है पोक्सो एक्ट की, एंड देयर आर एलिगेशन, मैं अभी भी एलिगेशन ही कहूंगा क्योंकि मैटर इज स्टिल सब जुडिस, कि देयर वर एलिगेशन कि फादर हैज सेक्सुअली असॉल्टेड ए माइनर गर्ल, माइनर डॉटर. वो हमारे पास इंटरिम कंपनसेशन के लिए आए, मैंने उनसे बातचीत करना स्टार्ट किया. मैंने उनसे पूछा कि आपको और क्या प्रॉब्लम है, कि इंटरिम कंपनसेशन का एस्पेक्ट तो कवर हो जाएगा, कि इंटरिम कंपनसेशन है कि आपकी जो मेंटल, फिजिकल और जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वी विल टेक केयर ऑफ. उन्होंने मुझे कहा कि सर हमें जो दिक्कत आ रही है कि इस इंसिडेंट के बारे में मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आ गई, मीडिया ने कुछ रिपोर्टिंग की, और मीडिया फ्रॉम लोकल मीडिया टू नेशनल मीडिया. उन्होंने मुझे एक मीडिया रिपोर्टिंग दी, ए वेरी फेमस एंड नेशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर. मीडिया ने क्या किया, मीडिया ने जब उसके इंसिडेंट को रिपोर्ट करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले उन्होंने लिखा कि विक्टिम के फादर और डॉटर हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, दिल्ली में कहाँ रहते हैं, इनकी फैमिली में कितने लोग हैं, मदर क्या जॉब करती है. आप पोक्सो एक्ट का अगर आप पढ़ेंगे तो पोक्सो एक्ट में क्लियर डायरेक्शन है कि द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम एंड एक्यूज शुड बी कॉन्फिडेंशियल, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस, प्रोसिक्यूशन एंड सोशल ग्रुप, इंडिविजुअल्स एंड मीडिया not to disclose the identity of the victim in any way. अब उसकी मीडिया की उस रिपोर्ट की वजह से हुआ क्या, बच्ची के स्कूल में पता लग गया, और बच्ची के जब स्कूल में इस तरह के इंसिडेंट आए तो उन्होंने उससे इंक्वायरी स्टार्ट की. द गर्ल चाइल्ड स्टॉप गोइंग टू द स्कूल एंड उसने एग्जाम भी नहीं दी. मदर के जो वर्क प्लेस था, मदर के वर्क प्लेस पे जो उनके कलीग थे उन्होंने उससे पूछना स्टार्ट किया. मदर छुट्टियों पे चली गई. मतलब एक छोटी सी रिपोर्ट की वजह से विक्टिम को कितनी हरासमेंट हुई, दिस इज द स्टार्क एग्जांपल. अब उसके बाद हमने क्या किया कि हमने पोक्सो एक्ट में उस नेशनल न्यूज़पेपर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की डीएलएसए में. बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ डीएलएसए, आई एम द कंप्लेनेंट in that case, and the national newspaper has been called as a accused in POCSO Act. So there is a provision in POCSO Act for disclosure of commission of the offence on disclosure of the identity of the victim or accused, both. ट्रायल कोर्ट से उनको सम्मन हुआ, चार्ज फ्रेम हुआ. नाउ मैटर इज पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट इन रिवीजन. सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन की जब हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए जैसे आप एडवोकेट हैं और अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं. सबसे पहले पुलिस की एक विक्टिम ने एफआईआर दर्ज कराई, कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी, एफआईआर रजिस्टर. लोग कहता है कि एफआईआर की कॉपी उनको दे दी जाएगी. एफआईआर की कॉपी मिल गई, उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की प्रोसेस स्टार्ट होती है कि 161 के बयान होंगे, 164 के बयान होंगे, अगर कोई मेडिकल है तो मेडिकल होगा. अब तक क्या होता था कि लोग ये कहते थे कि मेडिकल एग्जामिनेशन इज इटसेल्फ ए हरासमेंट फॉर विक्टिम. फॉर्चुनेटली इन दिल्ली मुझे लगता है कि पहला स्टेट है, अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वन स्टॉप सेंटर होगा. वन स्टॉप सेंटर होगा जहाँ पे जो रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के जो विक्टिम्स आएंगे उनको एक ही रूम में, एक ही जगह पे उनका सारा मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर कोई लीगल नीड है तो लीगल सर्विस एडवोकेट विल बी प्रोवाइडेड अंडर वन रूम, अंडर वन रूफ. उनको अलग अलग जगह नहीं भागना पड़ेगा.
ये भी एक अच्छा स्टेप है कि कम से कम विक्टिम को ये हरासमेंट ना हो। जैसे हम 164 के लिए कहते हैं कि 164 को विटनेस को बार बार भागना है कि वो कभी एक कोर्ट रूम में जा रहे हैं, कभी दूसरे कोर्ट रूम में जा रहे हैं। नाउ इन दिल्ली देयर इज अ स्कीम कि हर कोर्ट रूम में देयर इज अ वन स्टॉप सेंटर, जहाँ पे हर विटनेस की जो स्टेटमेंट है 164 की, रेप विक्टिम की और सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम की और माइनर विक्टिम्स की, दैट स्टेटमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन द वन स्टॉप सेंटर एंड इज नॉट इन द कोर्ट रूम। आप सबने देखा होगा कि पुलिस के पास 173 में देयर इज अ प्रोविजन टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट एंड कॉपी ऑफ द एविडेंस, और जो डॉक्यूमेंट उन्होंने कलेक्ट किए हैं कि वो अक्यूज को सप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ उन्होंने सप्लाई नहीं किए तो 173 में जब वो चार्जशीट फाइल कर देंगे तो इट इज मैंडेट फॉर कोर्ट टू सप्लाई द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड चार्जशीट टू द अक्यूज। क्या कोई ऐसा प्रोविजन विक्टिम्स के लिए है? देयर इज नो सच विक्टिम, देयर इज नो सच प्रोविजन एट ऑल। अब जब भी आप किसी गांव में जाएं, किसी जगह जाएं, अगर आपसे कोई विक्टिम आपसे आके कोई लीगल कानूनी सलाह ले, तो जो उसकी सबसे बड़ी परेशानी होगी वो ये होगी कि मुझे नहीं पता कि इन्वेस्टिगेशन में चल क्या रहा है, उसे नहीं पता कि चार्जशीट कब फाइल होगी। कानून में मैंडेटरी प्रोविजन है कि आप 90 दिन में चार्जशीट फाइल करेंगे, लेकिन वो तब है जब अक्यूज कस्टडी में है। इफ द अक्यूज इज नॉट इन कस्टडी then there is no time limit for filing of charge sheet except the limitation period, वो भी 3 साल तक के ऑफेंसेस को कवर करता है, उसके अलावा तो कहीं लिमिटेशन नहीं है। तो देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ चार्ज शीट। विक्टिम की जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है वो यही होती है कि मुझे नहीं पता कि मेरी चार्ज शीट कब फाइल हो रही है, मुझे नहीं पता कि मेरी इन्वेस्टिगेशन में कब चल रहा है। और सबसे मज़ेदार चीज़ तो अब प्रोसिक्यूशन पे आती है। आपने कभी प्रोसिक्यूशन विटनेस को एग्जामिन होते देखा होगा? मैं आप सभी के लिए ये एक आई ओपनर है, हमारे लिए तो रोज ही देखते हैं हम ये चीज़ कि अगर आप डिफेंस की तरफ से गवाह तैयार करके लेके जाते हैं, पहले आप उसको चैम्बर में बैठाते हैं, उसको पूरी उसकी स्टेटमेंट पढ़ाते हैं, फिर आप उसको ये भी बताते हैं कि आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे क्रॉस एग्जामिनेशन में। तो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी आपने उसको तैयार किया। क्या आपने कभी किसी प्रोसिक्यूशन विटनेस या विक्टिम को गवाही के लिए आते हुए देखा है? वो बेचारा जब गवाही के लिए आता है तो उसे नहीं पता कि उसके 161 के बयान में क्या लिखा है, क्योंकि 161 का उसको नहीं पढ़ के सुनाया जाता। कहीं कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन में 161 की उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि आपने ये स्टेटमेंट दी है, 161 पे साइन भी नहीं होते, तो उसे नहीं पता कि 161 में उसने क्या कहा। पीपी साहब आगे गवाही होती है, पीपी साहब जैसे ही पीपी साहब पहुंचेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये गवाह आया हुआ है। पीपी साहब की पहली मीटिंग है विक्टिम के साथ बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। नायब कोर्ट ने उसको गवाही पढ़ा दी या नहीं पढ़ा दी, वो बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर पढ़ा भी दिया तो वो एक समझ में आने की चीज़ें नहीं है कि 161 के बयान में आधी तो उर्दू होती है। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस जब बेचारा एग्जामिनेशन इन चीफ के लिए बैठा तो उसके पास बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है। हम जब कन्विक्शन रेट या एक्विटल रेट की बात करते हैं, दिस इज वन ऑफ द रीजन। और इसमें प्रोसिक्यूशन की मैं बहुत ज़्यादा गलती नहीं मानता, क्योंकि हमारे ही इंडिया में प्रोसिक्यूशन के पास उस तरह का सेटअप या उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि एक मजबूत प्रोसिक्यूशन के लिए चाहिए। उनके पास एक स्पेशल रूम हो, उनके पास स्टाफ हो, उनके पास स्टेनोज हो। रादर दिल्ली में बेस्ट प्रोसिक्यूशन माना जाता है, लेकिन दिल्ली में भी ये चीज़ें नहीं है। क्योंकि मैं 2 साल प्रोसिक्यूशन में रहा हूँ, तो आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस कि नायब कोर्ट ने 161 के बयान पढ़ा लिया, हमने 161 के बयान देखे और गवाह से गवाही करानी स्टार्ट कर दी। अब वो क्रॉस एग्जामिनेशन में उस गवाह का क्या हाल होगा, ऑल कैन अंडरस्टैंड। प्रोसिक्यूशन में विक्टिम को कभी भी बहुत ज़्यादा काउंसलिंग या मीटिंग नहीं दी जाती है। उसकी जो एंजाइटी होती है वो कभी भी बाहर या रिड्रेस नहीं होती है। और सबसे मजेदार चीज़ है कि उसके पास प्राइवेट एडवोकेट करने का राइट तो है 301 में, 301 सीआरपीसी में भी आपको राइट दे रखा है हमने कि वो अपना प्राइवेट एडवोकेट कर ले। लेकिन प्राइवेट एडवोकेट विद द परमिशन ऑफ द prosecution, only for assistance to the prosecution, not independent। तो यहाँ आप, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ विक्टिमाइजेशन। हम विक्टिमोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन को ना मान के चले कि कंपनसेशन दे दिया और कंपनसेशन से विक्टिमाइजेशन खत्म हो गई है या विक्टिमोलॉजी को हमने अच्छे से डील कर लिया है।
दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ विक्टिमाइजेशन। अब मैं आता हूँ कोर्ट के ऊपर, क्योंकि क्रिटिसिज्म सिर्फ पुलिस या प्रोसिक्यूशन का करके अच्छा नहीं लगता। जब कोर्ट में विक्टिम आते हैं, मैं सीआरपीसी की बात कर रहा हूँ, सीआरपीसी में एक्सेप्ट फ्यू प्रोविजंस, देयर इज नो प्रोविजन फॉर नोटिस टू द विक्टिम आइदर ऑन बेल, नो नोटिफिकेशन ऑन रिलीज ऑफ द एक्यूज। कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं होता कि आपके अक्यूज को रिलीज कर दिया गया है। गवाही के अलावा विक्टिम को एज ए विटनेस के तौर पे यूज करने के अलावा हम विक्टिम को पूरी ट्रायल में कहीं याद नहीं करते। किसी भी स्टेज पर उसको नहीं बुलाया जाता कि आप इस स्टेज पे आके अपना पक्ष रख दें। और सभी विक्टिम पैसे वाले हों, एडवोकेट हायर करने, ये भी जरूरी नहीं है। अब मैं डीएलएसए के एस्पेक्ट पे आ जाऊं कि डीएलएसए में भी एक दिस पॉइंट इज लैकिंग कि डीएलएसए में जहां पे हम स्टेट केसेस में विक्टिम को वी डोंट प्रोवाइड लीगल एड एडवोकेट एक्सेप्ट फॉर द विक्टिम ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट और रेप और पोक्सो केसेस। क्योंकि वहां पे जब विक्टिम हमारे पास आते हैं तो वी सिंपली से कि देयर इज अ prosecution in the court to assist you, to help you, कि आपका केस अब स्टेट लड़ेगा, आप नहीं लड़ेंगे। एक और एस्पेक्ट जो विक्टिम कंपनसेशन का है, जो मालिमत कमेटी रिपोर्ट में भी पॉइंट आउट किया गया कि जो होस्टाइल विटनेस के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, इट इज द रिजल्ट ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ लॉ ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन। क्या कोई कानून है लॉ ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन के अभी तक? देयर इज ओनली सम स्कीम, and I can boast of कि Delhi was the first state to start this Delhi Witness Protection Scheme. Apart from that, there is no such act. पहले विटनेस प्रोटेक्शन कमेटी में मैं आई विल टेक 5 minutes for witness protection because it is very important for all of us, being advocate, being litigant. So for everyone who is in a criminal trial must know about witness protection scheme. रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा गया कि इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट टू कॉन्स्टिट्यूट द विटनेस प्रोटेक्शन कमेटी। प्रायर टू दैट जो मेंबर सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के थे, ही वाज द इंचार्ज ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन कमेटी, और वो पूरी दिल्ली की विटनेस प्रोटेक्शन की जितनी कंप्लेंट्स थी उनको डील करते। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद अब हर डिस्ट्रिक्ट में एक विटनेस प्रोटेक्शन कमेटी, एंड विटनेस प्रोटेक्शन कमेटी इज चेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। Convener is the chief public prosecutor. DCP is the member of the committee. DCP means DCP of the concerned district. There is a procedure कि अगर किसी भी तरह की कोई भी एलिगेशन है, अगर किसी को भी कोई थ्रेटन है, किसी भी विटनेस को, वेदर इज अ विक्टिम और विटनेस, अगर किसी भी तरह का डर है तो वो एक सिंपल सी एप्लीकेशन चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या डिस्ट्रिक्ट विटनेस प्रोटेक्शन कमेटी जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में है, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट विटनेस प्रोटेक्शन कमेटी चेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट जज एंड कन्वीनर इज द चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वहाँ पे एक लेटर देके आप दे सकते हैं और उसकी एक मीटिंग रेगुलर फ्रीक्वेंटली मीटिंग होती है जहाँ पे जो कमेटी है दैट विल कॉल फॉर थ्रेट एनालिसिस रिपोर्ट। थ्रेट एनालिसिस रिपोर्ट वहाँ से मंगवाई जाएगी जहाँ पे की विटनेस डिसाइड करता है। मान लीजिए केस करकड़ुमा का है या ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का है और अगर विटनेस रोहिणी रहता है या नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में है, तो जो थ्रेट एनालिसिस जो रिपोर्ट है दैट विल बी फाइल्ड बाय द डीसीपी नॉर्थ एंड बोथ द डीसीपी विल ज्वाइन द मीटिंग एट द टाइम ऑफ ऑर्डर। और विटनेस प्रोटेक्शन में देयर इज अ सफिशिएंट सेफगार्ड दैट कैन बी ऑर्डर्ड बाय द कमेटी। उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जा सकती है, राइडर्स को इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है कि आप यहाँ पे इनके घर के चारों तरफ जाएंगे। रेगुलर 24 आवर पुलिस प्रोटेक्शन हो सकती है। इवन देयर आर प्रोविजन फॉर चेंज ऑफ द हाउस होल्ड कि आपके घर को किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करा दिया जाए। बट वी मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस विटनेस प्रोटेक्शन कमेटी। अब विक्टिम के लिए दिस इज अ जनरल प्रिंसिपल कि वी शुड प्रिजर्व द डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स आल्सो ड्यूरिंग द ट्रायल। साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्लियरली कहा गया कि आप कैमरा प्रोसीडिंग्स करेंगे, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स करेंगे
पॉक्सो एक्ट के जो स्पेशल कोर्ट्स हैं वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल है कि जहाँ पे अदर दिस नॉट फॉर ओपन कोर्ट, इट्स ओनली फॉर द पार्टीज। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आज अभी जो हुई है, जो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, दैट इज अ वल्नरेबल विटनेस रूम, एंड दिस इज आल्सो द काइंड ऑफ कंसेप्ट दैट हैज बीन अडॉप्टेड इन दिल्ली ओनली। कि दिल्ली में सबसे पहले वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन रूम स्टार्ट हुए, एंड दैट इज अ वंडरफुल कंसेप्ट फॉर द विटनेसेस हु आर वल्नरेबल, हु कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द अक्यूज। जैसे आप बच्चों की बात करें, मान लीजिए कोई पॉक्सो एक्ट में कुछ माइनर सा बच्चा है, 8 साल 10 साल 12 साल का कोई बच्चा है, अगर आप उसको अक्यूज के सामने लेके जाएंगे तो ही विल बी मोर एप्रीहेंसिव, ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक फेयरली। वो अपने बिना फ्री, ही विल नॉट बी, डिपोजिशन विल नॉट बी फ्री ऑफ प्रेशर। तो आज दिल्ली में अभी हर कोर्ट रूम में इस तरह का डिपोजिशन कमरा, इस तरह का डिपोजिशन रूम है, and it is a very wonderful thing to visit everyone who has not visited such room, कि जहाँ पे अक्यूज और विक्टिम को कभी भी आमने सामने नहीं लेके आया जाता। The whole room has been divided into 3 parts. In one room there will be the accused who can watch all the proceedings, but he will not be seen by the victim. In one part there will be the advocates and the judge, and in the second room there will be the witness with some support person. और इस तरह से जो पूरी की पूरी डिपोजिशन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और वीडियो एंड ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होती है। दिस इज आल्सो वेरी गुड कंसेप्ट। तो जब हम बात करें कि विक्टिम इज नॉट ओनली ऑफ द, विक्टिम का एस्पेक्ट सिर्फ कंपनसेशन नहीं है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ विक्टिम प्रोटेक्शन। जो दूसरा एस्पेक्ट है दैट इज अ कंपनसेशन, विक्टिम कंपनसेशन। अगर हम विक्टिम कंपनसेशन की बात करें तो 1973 जब हमारे सीआरपीसी जो अभी हम यूज करते हैं, इस सीआरपीसी से पहले जो ओल्ड सीआरपीसी है उसमें प्रोविजन था 545, वो सिर्फ 357(1) का जो पार्ट है उसके बिल्कुल सिमिलर था, जहाँ पे अगर कोर्ट सेंटेंस करती है कन्विक्शन के बाद, सेंटेंसिंग के टाइम इज द फाइन इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, देन the whole fine or part of the fine may be given to the victim as a compensation. इस प्रोविजन का एक लिमिटेशन है, rather 2 लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन तो ये कि आईपीसी में या किसी भी क्रिमिनल लॉ में कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो फाइन की एक लिमिट करते हैं कि 10,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है या 5,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है। सेकंड एस्पेक्ट की जब मजिस्ट्रेट सेंटेंस देता है तो मजिस्ट्रेट की जो पावर है फाइन इम्पोज करने की, दैट इज आल्सो लिमिटेड। इट मीन्स कि अगर मजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस में फाइन इम्पोज कर रहा है और वो कंपनसेशन देना चाहता है तो 357A में द लिमिट इज ओनली 10,000, वो 10,000 से ऊपर नहीं जा सकता। इसीलिए जो 1973 में जब नया सीआरपीसी अडॉप्ट किया गया तो उसके अंदर एक प्रोविजन ऐड किया गया, दैट वाज 357C, जहाँ पे ये कहा जाता है कि आफ्टर कन्विक्शन अगर आप सेंटेंस कर रहे हैं तो अगर फाइन की उस सेंटेंस का पार्ट नहीं है तो यू कैन अवार्ड कंपनसेशन टू द विक्टिम टू बी पेड बाय द अक्यूज, सॉरी टू बी पेड बाय द कन्विक्ट। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं और लॉ भी यही कहता है कि वाइल अवार्डिंग कंपनसेशन यू हैव टू कंसिडर द नेचर ऑफ द ऑफेंस, सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंस एंड द कैपेसिटी ऑफ द अक्यूज टू पे द कंपनसेशन। ऑल these aspects has to be considered before awarding the compensation under section 357C. यहाँ तक तो 357C के बाद भी जो हमारा jurisprudence है, जो criminal jurisprudence है compensation का, that has evolved further and that comes to the 357C, that comes to the 357A, 164, I think 164 report of law commission, उसमें ये रिकमेंड किया गया कि आप इसको ऐड कीजिए। एंड 357 इज अ वंडरफुल प्रोविजन। एंड जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, अगर रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसके बाद गायकवाड़ एंड सत्य प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली,
सभी जजमेंट में ये कहा गया कि 357(1) and 357(3) are good provision. They have social implications, but they have been used seldom. बहुत कम यूज, मतलब I've been in the court, तब I can agree कि 357 का बहुत कम यूज किया जाता है, क्योंकि सेंटेंसिंग के टाइम अभी रिसेंटली ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है कि वी हैव स्टार्टेड कॉलिंग द सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट आफ्टर सत्यप्रकाश जजमेंट इन रोड एक्सीडेंट केसेस। उससे पहले हमें विक्टिम को भूल जाते थे, सेंटेंसिंग के टाइम विक्टिम नहीं प्रेजेंट होता था, विक्टिम को नोटिफाई नहीं किया जाता था कि यू हैव टू प्रेजेंट एंड यू कैन पुट फॉरवर्ड योर केस। तो 357 को भी बहुत कम यूज किया गया। 357 1 और 3 को अगर हम यूज कर देख के पढ़ें तो उसके अंदर वर्ड यूज किया गया है मे। इट मीन्स इज अ डिस्क्रिशनरी। लॉ सेज कि द अवार्डिंग ऑफ कंपनसेशन इज डिस्क्रिशनरी, but every court, every criminal court, while passing a judgment or passing a sentence, has to apply its mind to whether compensation has to be awarded or not. It is mandatory provision. It is not discretionary. You can leave it. अगर आप sentencing कर रहे हैं तो you have to give your opinion. You have to give your reason whether you want to award compensation or not. If you want to award compensation, you have to give reason. If you don't want to award compensation, you have to give reason. There must be reason for awarding or not awarding the compensation. अब क्वेश्चन उठता है कि क्या सिर्फ विक्टिम कन्विक्शन के केस में ही होता है? क्योंकि 357 की लिमिटेशन ये है कि 357 में कंपनसेशन हम तभी अवार्ड करते हैं जब हम सेंटेंसिंग कर रहे हैं। आफ्टर कन्विक्शन व्हेन वी सेंटेंस देन वी अवार्ड कंपनसेशन अंडर सेक्शन 357। क्या विक्टिम एक्विटल के केस में विक्टिम नहीं होता या डिस्चार्ज के केस में विक्टिम नहीं होता? Then the legislation and to apex court put one foot forward and come to the conclusion that there must be some changes, and 357A came into picture. अब DLSA में है तो 357A का यूज हम बहुत करते हैं, क्योंकि जो DLSA में आने के बाद अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ कि more than 2.5 years of service, the most satisfying thing in DLSA is awarding compensation under Delhi Victim Compensation Scheme. इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन DLSA में नहीं है। मेरे लिए पर्सनली नहीं है कि दिस वाज द मोस्ट सोशल वर्क यू आर डूइंग इन द DLSA। इसमें कुछ सक्सेस स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो हमने DVCC की मीटिंग्स में या हम जब विक्टिम के साथ इंटरेक्शन करते हैं उस टाइम। 357A पे अगर हम आए उससे पहले मैं एक आपसे शेयर करता हूँ कि पोक्सो एक्ट का इंसिडेंट कि हम विक्टिम कंपनसेशन में विक्टिम के साथ इंटरेक्शन करते हुए कितना इनोवेट कर सकते हैं, कितनी उसकी हेल्प कर सकते हैं और उसके लिए कितना रिलीफ हो सकता है। एक 5 या 6 साल की बच्ची के साथ स्कूल में रेप हुआ, पोक्सो एक्ट में FIR दर्ज हुई एंड द मैटर केम टू DLSA फॉर इंटरिम कंपनसेशन। एज यूजुअल आफ्टर इंटरेक्शन आई आस्क्ड हर मदर डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी अदर प्रॉब्लम, कि कोई आपको और भी कोई परेशानी तो नहीं है? द मदर ने मुझे कहा कि सर और तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं अब मेरी बच्ची को उसी स्कूल में कैसे पढ़ाऊँ, क्योंकि उसी स्कूल में इंसिडेंट हुआ है, उसी स्कूल का स्टाफ है, अगर मैं मेरी बच्ची को उस स्कूल में भेजूंगी तो इट विल नॉट बी सेफ एंड शी वाज क्वाइट राइट। मैंने उससे एक एप्लीकेशन ली कि मैंने कहा मैडम आप एक एप्लीकेशन दे दो कि आपको ये परेशानी हो, मुझे एक स्कूल का नाम सजेस्ट करो। उसने कहा कि पड़ोस में मेरा बेटा स्कूल में जाता है, उसी स्कूल में मेरी बेटी का एडमिशन हो जाए। अल्टीमेटली अपार्ट फ्रॉम अवार्डिंग कंपनसेशन टू द गर्ल, मैंने उसकी एप्लीकेशन पे एक लेटर लिखा DLSA की तरफ से DDO को, जो एजुकेशन डील कर रहे थे। मैंने कहा सर अब इसमें हम आप हमारी कुछ हेल्प कर सकते हैं एडमिशन में। उन्होंने कहा कि सर ये जो स्कूल आप रिकमेंड कर रहे हैं दिस इज नॉट ऑथराइज, दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट। देन ही सजेस्टेड, ही वाज वेरी नाइस फेलो, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर मैं इसकी मतलब ब्रदर और सिस्टर जो विक्टिम है उसको और उसके ब्रदर दोनों को एक अच्छे रिकॉग्नाइज स्कूल में एडमिशन करा देता है। एंड विद द एफर्ट ऑफ DLSA एंड विद द असिस्टेंस ऑफ द अथॉरिटी, जो विक्टिम थी वो और उसका ब्रदर दोनों को एक अच्छे रिकॉग्नाइज स्कूल में एडमिशन दिया। तो एक जो जॉब सेटिस्फैक्शन की मैं बात कर रहा था, दिस इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस जो हम रोज फील करते हैं। 357A कहता है कि
हर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक टीम इजाद करनी है, जिस टीम के तहत हम विक्टिम कंपनसेशन फंड क्रिएट करें और जो विक्टिम्स हैं उनको हम वो कंपनसेशन अवार्ड करें। देखिए, कंपनसेशन का अगर हम जो स्टूडेंट्स देखें, कंपनसेशन को देखें, तो किसी भी व्यक्ति की डेथ या किसी को जो मेंटल और फिजिकल इंजरी हुई है, उनको आप मनी की टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जज नहीं कर सकते। लेकिन कंपनसेशन कैन बी अ काइंड ऑफ solace to the victim, and it can be a kind of reassurance that you are not forgotten by the system. उनको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए एक अच्छा मैकेनिज्म है कि उनको भी लगे कि दे आर स्टिल अ पार्ट ऑफ सिस्टम, दे आर नॉट फॉरगेटन बाय द सिस्टम। तो विक्टिम कंपनसेशन 357A जो 2 and 3 है, जनरली जो विक्टिम कंपनसेशन हमारे पास आता है वो 2 तरीके से आता है। फर्स्ट, रिकमेंडेशन बाय द कोर्ट, एंड सेकंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द विक्टिम्स और डिपेंडेंट। अगर हम डेफिनेशन पार्ट पे ना जाएं, इट विल बी वेरी क्रिटिकल एंड लेंथी, तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक प्रोसीजर समझा दूं कि मान लीजिए कोई इंसिडेंट हुआ, कोई मैटर रिपोर्ट हुआ, क्राइम रिपोर्ट हुआ। अगर कोई क्राइम रिपोर्ट होता है तो अगर फाइनल कंपनसेशन से पहले एक प्रोविजन है कि आप उसमें इंटरिम कंपनसेशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। इंटरिम कंपनसेशन के लिए वी कैन प्रोसीड आइदर ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ एसेट or the report of the concerned magistrate, or even the suo motu compensation can be given, or even on the application of the victim. इन चारों मोड में से किसी भी मोड से अगर हमारे पास एप्लीकेशन आती है इंटरिम कंपनसेशन। इंटरिम कंपनसेशन इज मेंट फॉर इमीडिएट अर्जेंट रिलीफ, कि आपको अगर इमीडिएटली कोई मेडिकल नीड है एंड इमीडिएटली अगर आपको कोई अर्जेंट कोई नीड है तो आप यू कैन मूव एप्लीकेशन बिफोर द डीआरएसपी। और जब हम इंटरिम लीव की बात करते हैं तो इंटरिम लीव इंक्लूड नॉट ओनली द मॉनेटरी रिलीफ, अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी रिलीफ वी कैन ऑर्डर फॉर मेडिकल असिस्टेंस, फर्स्ट एड असिस्टेंस, लाइक दैट। अब इसी फर्स्ट एड की तो मुझे याद आया कि मेडिकल असिस्टेंस में दिल्ली गवर्नमेंट की एक स्कीम है जहाँ पे रोड एक्सीडेंट के जो विक्टिम्स हैं, उनको अगर रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स को किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे आर एंटाइटल फॉर फ्री मेडिकल, whether it's bedding, lodging or surgery, everything is free under that scheme. हमारे पास एक इंटरिम कंपनसेशन के दौरान एक विक्टिम आई, उनके पूरे सिर पे सर्जरी हो रखी थी, शी वाज इन वेरी बैड कंडीशन। और मैंने उसे इंस्पेक्शन के दौरान पूछा कि मैंने कहा तुम्हारा इलाज हो गया कंप्लीट? उन्होंने कहा सर मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गई थी और उस प्राइवेट हॉस्पिटल ने मुझे एक सर्जरी कर दी, उन्होंने कहा कि आपकी सर्जरी 10 दिन के बाद होगी और मुझे डिस्चार्ज कर दिया। अब उस स्कीम से बचने के लिए उस हॉस्पिटल ने बेसिकली उसको डिस्चार्ज टाइम से पहले कर दिया, अदरवाइज वो जो कंप्लीट सर्जरी के बगैर उसको डिस्चार्ज किया उन्होंने। तो स्कीम ये कहती है कि द ट्रीटमेंट एंड सर्जरी इज फ्री, तो अल्टीमेटली आई हैव टू राइट अ लेटर टू द हॉस्पिटल, उस स्कीम का हवाला देके पूरा डिटेल्स लिख के कि भी आप अपने जिम्मेवारी से इस तरह से नहीं बच सकते, यू कांट टेक वाया मीडिया, आप अपने दूसरे रास्ते से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बच सकते। एंड अल्टीमेटली जो उनकी बाकी सर्जरी थी वो कंप्लीट की गई। तो इंटरिम लीव के दौरान वी कैन हेल्प द विक्टिम इन मैनी अदर वे अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी कंपनसेशन। अब मैं जिस स्कीम की बात कर रहा हूँ दैट इज द दिल्ली विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2018। Initially the scheme was devised in 2011, that was replaced by 2015, and now the recent judgment of Nipun Saxena, after Nipun Saxena judgment, this new scheme came into picture, that is the Delhi Victim Compensation Scheme 2018। अब नई स्कीम में बेसिकली 2 पार्ट में हो गई है, एक वन इज फॉर जनरल ऑफेंसेस एंड अदर इज द कंपनसेशन स्कीम फॉर द विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, वुमेन विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड अदर क्राइम। जो वो offenses which are the crime merely because those offenses have been committed against women, they are covered separately in the second part. This is the new addition in the scheme. तो changes क्या है, difference क्या है, that we will deal later on. अब हम प्रोसीजर की बात कर रहे थे कि अगर किसी को इंटरिम कंपनसेशन चाहिए तो वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है या एसएचओ को रिक्वेस्ट कर सकता है या मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगा सकता है, या हम सुओ मोटो अगर हमारी नॉलेज में आता है तो वी कैन टेक एक्शन। इंटरिम लीव के बाद में आता हूँ फाइनल रिलीफ लीव। फाइनल रिलीफ में हम क्या करते हैं,
फाइनल रिलीज में अगर चार्जशीट फाइल हुई है और मैटर हैज गॉन फॉर द ट्रायल कंप्लीशन के बाद आफ्टर कन्विक्शन एंड सेंटेंस के दौरान अगर कोर्ट को लगता है द कोर्ट हैज टू अप्लाई फाइन ऑन द एस्पेक्ट ऑफ कंपनसेशन, द फर्स्ट कोर्ट हैज टू लुक इनटू वेदर द compensation has to be awarded, and if compensation has to be awarded, who will pay the compensation? If accused is in the capacity to pay the compensation, it is the primary responsibility of the accused to pay compensation. If court comes to the conclusion that accused is not able to pay the compensation, his financial condition is not good. In such condition, if court comes to the conclusion that the compensation awarded under Section 357 is not adequate, then the court may recommend to the DLSA or DSLSA for further compensation under the scheme. सेकंड जो मोड है, ये फर्स्ट मोड है जहाँ पे कोर्ट की रिकमेंडेशन हमारे पास आती है ट्रायल के बाद। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एडवोकेट की और प्रोसिक्यूशन की, क्योंकि कोर्ट के टाइम कोर्ट में जब सेंटेंसिंग होती है तो यू कैन प्रेस फॉर इट कि प्लीज रेफर दिस मैटर और रिकमेंड दिस मैटर टू द DLSA बिकॉज द कंपनसेशन अवार्ड इज नॉट एडिक्वेट। सत्य प्रकाश स्टेट में सर ने बड़ा लंबा चौड़ा मैकेनिज्म डिवाइस किया कि जब आप सेंटेंसिंग करेंगे, स्पेशली उन्होंने रोड एक्सीडेंट के लिए कहा कि आप विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट कॉल कीजिए और विक्टिम की और अक्यूज की दोनों की फाइनेंशियल कंडीशंस को देखिए, बाकी अदर फैक्टर्स भी देखिए और इन सभी फैक्टर्स को देखने के बाद आप कंपनसेशन अवार्ड करें। अगर उसके बाद आपको लगता है कि कंपनसेशन एडिक्वेट नहीं है 357 में, तो आप उसको 357A में दिल्ली विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत DLSA को रिकमेंड कीजिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेज आते हैं वो है 357A4 कि हमें MSCT के बारे में हमें सबको पता है कि भी अगर रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई व्हीकल इंश्योर्ड है, व्हीकल इंश्योर्ड नहीं है, इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी लाइबल टू पे कंपनसेशन अंडर MSCT, और अगर इंश्योर्ड नहीं है तो ओनर एंड ड्राइवर आर बोथ आर लाइबल जॉइंटली। बट ना क्वेश्चन अराइजेस कि अगर रोड एक्सीडेंट में व्हीकल ट्रेस आउट नहीं होता है, दिस इज अ केस ऑफ हिट एंड रन, अनट्रेस रिपोर्ट फाइल हुई है। अनट्रेस रिपोर्ट के केस में द DLSA हैज टू कंसीडर द एप्लीकेशन ऑफ द विक्टिम फॉर विक्टिम कंपनसेशन। The moment the untraced report is filed and untraced report is accepted by the court, the person is entitled for the compensation. तो सिंपल सा तरीका है, मैं अब जो हमारे एडवोकेट्स हैं जो भी हैं यहाँ पे, उनसे एक रिक्वेस्ट में जरूर करना चाहूँगा कि आपके पास जो लिटिगेंट्स आए, आप किसी भी तरह से किसी लिटिगेंट को आप गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं कि अगर अनट्रेस्ड के केसेस में आपके पास कोई विक्टिम आता है, चाहे आप 304A के 304A क्रिमिनल ट्रायल के दौरान आया या आपके पास MSCT के दौरान आया, चार्ज फाइल करने के बाद आया, अगर आपके पास आता है तो यू कैन गाइड हिम फॉर कंपनसेशन अंडर द स्कीम बिफोर द DLSA। बट लेकिन एक चीज़ जो हमारी नॉलेज में आई, तो जो चीज़ हमने नोटिस भी की, इस तरह के विक्टिम्स को, इस तरह के लिटिगेंट्स को वी हैव स्टार्टेड, मैं आई विल नॉट से समथिंग, इट्स नॉट जनरल कि कुछ एडवोकेट स्टार्ट कर देते हैं कि इट्स जस्ट काइंड ऑफ MSCT। आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर दिस इज नॉट MSCT। यहाँ कोई एडवोकेसी किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट फॉर DVC। You can request him, you can guide him to go to the DLSA, and rest is on us. We will take care of each and everything. He is not required to even write any application. So this is a just personal request, और this is our social responsibility also. जो विक्टिम हमारे पास आया हम उसको प्रॉपरली गाइड करें। तो जब वो अनट्रेस्ड रिपोर्ट के बाद हमारे पास एप्लीकेशन लगाए, एप्लीकेशन में जनरली एक फॉर्मेट है जो स्कीम के अंदर ही दिया गया है, उस फॉर्मेट में एप्लीकेशन विल बी फाइल्ड along with the list of victim or dependent, and the FIR and other documents. We collect the untraced report and copy of that from the IU. Apart from this, nothing is required. जब इस तरह की एप्लीकेशन हमारे पास इंटरिम हो या फाइनल हो, हालांकि स्कीम में कहीं नहीं है, बट दिल्ली में एक कमेटी प्रोड्यूस कर रखी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दैट कमेटी इज कॉल्ड दिल्ली विक्टिम कंपनसेशन कमेटी। Convener is the Secretary District Legal Service Authority, being chaired by an senior additional session judge.
and member is the chief public prosecutor, 3-member committee. And this committee considers the applications of the applicants for compensation, either interim or final. And after considering the factors like the nature of the offense, severity of the offense, expenses incurred or likely to be incurred on the medical of the victim, or like that, victim की एज कितनी थी, victim के number of dependents कितने हैं, उसका financial status क्या था, everything has to be considered before deciding the quantum of compensation. यहाँ पे एक चीज जो नोट करने की है कि ट्रायल कोर्ट के पास पावर नहीं है क्वांटिफाई करने की. That no trial court has power to quantify the amount of compensation. This is clear. लेकिन यहाँ पे एक exception है. Only the POCSO court, POCSO special court, has power to decide and quantify the interim as well as final compensation. कि अगर POCSO court है तो POCSO can directly quantify and send us to see this is the amount of compensation to be awarded to the victim. और ये order आने के बाद we just disburse the compensation amount. So this is clear that no trial court has power to quantify the compensation. Here I would like to take few minutes on the aspect of disbursement. कि disbursement कैसे होगी? Disbursement का simple है कि अगर adult को हम compensation दे रहे हैं, interim compensation has to be given in full immediately because that is for urgent relief. But for final compensation, as far as the final compensation is concerned, in case of adults, 25% of the compensation amount will be released immediately, and the 75%, तो 75% जो compensation amount है, वो हम उन्हें 3 साल की FD करके देंगे. और जो FD है उसका जो इंटरेस्ट है वो मंथली बेसिस पे उसके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होगा. In case of minor, the 20% of the compensation amount shall be released immediately, and 80% of the amount that will be in the form of FD till the minor attain majority or 3 years, whichever is later. कि 18 साल तक होने तक की FD होगी या 3 साल. मान लीजिए 17 साल की बच्ची है तो जब वो 20 साल की होंगी तो उनको वो 80% मिल जाएगा. और अगर मान लीजिए 12 साल का बच्चा या बच्ची है विक्टिम, तो उनको जब वो 18 साल की होंगी 6 साल की FD के बाद उनको जो 80% जो कंपनसेशन है वो उनको रिलीज कर दिया जाएगा. दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ DVCC. लेकिन दिल्ली विक्टिम कंपनसेशन स्कीम में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि 2018 में सेकंड पार्ट वाज एडेड. दिस सेकंड पार्ट वाज फॉर द वुमेन विक्टिम्स ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट एंड अदर क्राइम. इसमें चेंजेस क्या है, और जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है दैट हैज बीन गिवन इन द शेड्यूल. लाइक डेथ के केस में दैट अमाउंट कैन बी 3 लाख to 10 lakh. In case of injury, that may vary from 50,000 to 5 lakhs. In case of burn injury, it varies from 2 lakh to 3 lakh to 7 lakh, depending on the severity of the injury. जब हम सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में या सेकंड पार्ट में हम बात करें तो जो वुमेन विक्टिम्स हैं, वुमेन विक्टिम के लिए जो सबसे जो चेंज है पुरानी वाली स्कीम में या जो फर्स्ट पार्ट से है कि इंटरिम कंपनसेशन जो कि दिया जाएगा दैट विल बी नॉट लेस देन 25% ऑफ द मैक्सिमम. मान लीजिए रेप केस की कोई विक्टिम या पोक्सो एक्ट में कोई विक्टिम अगर हमारे पास इंटरिम कंपनसेशन के लिए आते हैं तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में जो मैक्सिमम लिमिट है इंटरिम कंपनसेशन की दैट इज 50,000. कि हम फर्स्ट पार्ट में या जनरल ऑफेंस में जो मैक्सिमम इंटरिम कंपनसेशन दे सकते हैं दैट इज 50,000. बट जब हम सेकंड पार्ट में या वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस में आते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में आते हैं, द इंटरिम कंपनसेशन shall not be less than 25% ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट. जैसे रेप या पोक्सो के केसेस में 7 लाख की पनिशमेंट, 7 लाख का कंपनसेशन है मैक्सिमम. अगर वो हमारे पास इंटरिम कंपनसेशन के लिए आते हैं तो हमें मिनिमम उनको 1,75,000 दैट इज 25% ऑफ द मैक्सिमम कंपनसेशन दैट हैज टू बी गिवन. दिस इज अ मेजर चेंज that is in the second scheme. Apart from that, it is not like that the DLSA has no power to decline the compensation application. DLSA has all the discretion and all the power to decline the compensation application for victim compensation, but with the reason. अगर DLSA ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने किसी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया है
या पार्टी या एप्लीकेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, उन कंडीशन में ही हैज पावर टू चैलेंज द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू द चेयरपर्सन हु इज द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है। एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट डीवीसीसी का है, दैट इज द लिमिटेशन। ठीक है, कोई लिमिटेशन है कितने साल में हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्कीम सेज कि आप ऑफेंस होने के 3 साल के अंदर या ट्रायल के 3 साल के अंदर आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। मान लीजिए 2012 में कोई कोर्ट ने कोई रिकमेंडेशन नहीं की या कोर्ट ने डिसाइड कंटेस्ट पे डिसाइड किया या किसी अनसेज रिपोर्ट में अनसेज रिपोर्ट एक्सेप्ट होगी 2012 में और आप 2016 में एप्लीकेशन लेके आते हैं कि जी मेरी एप्लीकेशन ले लीजिए, तो द एप्लीकेशन इज टाइम बार कि एप्लीकेशन अनसेज रिपोर्ट एक्सेप्ट होने के या रिकमेंडेशन के 3 साल के अंदर आपको एप्लीकेशन मूव करनी है। दिस इज मैंडेटरी। अगर 3 साल में एप्लीकेशन नहीं मूव करते हैं दैट विल बी टाइम बार। एंड इंटरेस्टिंगली उस फर्स्ट पार्ट में देयर इज नो प्रोविजन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले कि अगर आपने 3 साल में एप्लीकेशन नहीं की तो किसी भी अथॉरिटी के पास या सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास किसी तरह की डिस्क्रिप्शन नहीं है डिले कंट्रोल करने के लिए। बट देयर इज अ चेंज इन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी लिमिटेशन पीरियड इज 3 ईयर कि आप 3 साल के अंदर ही एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। बट इन सेकंड पार्ट वुमेन रिलेटेड केसेस के लिए द डिस्क्रिप्शन हैज बीन गिवन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। फर्स्ट पार्ट में कॉन्डोनेशन का पावर नहीं है, आप सेकंड पार्ट में कॉन्डोनेशन है। अब अगर मैं आई विल प्रोसीड फॉर एसिड अटैक। एसिड अटैक के केस में वी ऑल नो, अभी हमने रिसेंटली एक मूवी देखी छपाक, उसकी जो लिटिगेंट है, उसकी जो विक्टिम है लक्ष्मी अग्रवाल। लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के एक रिट फाइल हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई एंड देयर इज अ लैंडमार्क जजमेंट, लैंडमार्क गाइडलाइन फॉर द एसिड विक्टिम। आप एक मैं पीछे बात कर रहा था कि विक्टिम्स की विक्टिमाइजेशन की एंड द हैंड ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। आप बिलीव, ये बात तो आप हम सब मानते हैं कि अगर हमें ये पता चल जाए कि शी इज अ रेप विक्टिम, अगर मकान मालिक को ये पता चल जाए कि रेप विक्टिम है, शायद हम उनको घर ना। एसिड अटैक विक्टिम्स को हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा उनको सोशल इस तरह का फेस करना पड़ता है। तो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कुछ गाइडलाइंस हैं मेनली फॉर हॉस्पिटल एंड फॉर द डीएलएसए अंडर द स्कीम। एसिड अटैक के केस में हॉस्पिटल्स के लिए जो मेनली है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसी भी तरह का, चाहे किसी भी फॉर्म में हॉस्पिटल है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल किसी भी एसिड विक्टिम को अगर कोई पुलिस या वो अपने आप जाती है या पुलिस लेके जाती है तो उन्हें आप हॉस्पिटल में फर्स्ट एड देने से या मेडिकल एड देने से मना नहीं कर सकते। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसलिए नहीं बच सकते कि जी मुझे हमारे पास इस तरह की कोई स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी नहीं है। लोग द जजमेंट सेज कि इवन इफ यू डोंट हैव एनी स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी इन योर हॉस्पिटल, यू हैव टू गिव द फर्स्ट एड टू द विक्टिम and you have to give a certificate so that the certificate can be used in any other hospital, any other specialized hospital for the medical treatment of the victim. अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो जजमेंट सेज कि फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम कंसल्टेशन, लॉजिंग, बेडिंग, मेडिकल, फूड एंड सर्जरी, एवरीथिंग हैज टू बी प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब किसी एसिड विक्टिम को अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल इस तरह की फैसिलिटी नहीं देता है, मतलब एवरीथिंग इज फ्री मीन्स कि द मोमेंट यू एंटर्ड इन द हॉस्पिटल, फ्रॉम फूड, लॉजिंग, मेडिसिन एंड इवन सर्जरी, number of any number of surgeries, they have to be provided free of cost. अगर कोई हॉस्पिटल इसकी नॉन कंप्लायंस करता है, that amounts to kind of criminal offense, and action can be taken against the hospital. The other important guideline was for the DLSA, and that has been incorporated in the scheme.
अगर सिंपल तरीके से मैं बताऊं तो अगर कोई ऐसी विक्टिम की इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, आइदर बाय वे ऑफ एप्लीकेशन और बाय वे ऑफ FIR और एनी अदर वे, अगर हमारे पास ऐसी विक्टिम की इंफॉर्मेशन है, इट इज मैंडेटरी फॉर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी to award compensation or interim award of compensation of rupees 1 lakh within 7 days, and that 1 lakh amount, 1 lakh rupees has to be disbursed within further 8 days. It means कि incident report होने के, incident knowledge में आने के within 15 days 1 lakh has to be awarded to the victim. Apart from that, the DLSA has to award further 2 lakh rupees within further 2 months of the this year. It means कि इंसिडेंट DLSA की नॉलेज में आने के 2.5 महीने, 2 months and 15 days, we have to award and disburse the compensation of rupees 3 lakh to the acid victim. Acid victim के केसेस हमारे पास मैंने भी काफी डील किए, और लॉ ये कहता है कि एसिड विक्टिम के लिए वी हैव टू कॉन्स्टिट्यूट ए बोर्ड. The board means the criminal injuries compensation board that has to be constituted as per the guidelines of Supreme Court. इस बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट जज या चेयरपर्सन, सेक्रेटरी इज द कन्वीनर. अपार्ट फ्रॉम दीज दे विल बी DCP ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर CDM. ये सारे के सारे उसके मेंबर होंगे. दे विल क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन. अब 3 लाख इंटरिम के बाद now there are amendments in the law which says कि free medical assistance has to be given to the victim. अब 3 लाख के बाद further amount भी दी जा सकती है, and that amount can be more than 3 lakh, and final compensation के टाइम जो victim compensation के लिए है, that is 3 lakh to 7 lakh. Minimum 3 lakh, maximum 7 lakh, depending on the injury. In case of disfigurement of face, the maximum amount is 7 lakh, 3 lakh to 7 lakh. If the injuries are 50% and above, that will be from 5 lakh to 7 lakh. And if the injuries are still less than 50%, then the compensation amount will be 3 lakh to 5 lakh. And this amount is, there is another, अभी रिसेंटली एक मेमोरेंडम आया था जिसमें था कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, जिसमें 1 लाख एडिशनल कंपनसेशन एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए, जो कि जिसके नोडल ऑफिसर जो जिसके इंचार्ज हैं वो DM होता है, जहाँ पे इस कंपनसेशन के अलावा भी उनको अवार्ड किया जा सकता है, कंपनसेशन दिया जाता है. एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी एट कि आप लोगों ने सुना भी होगा किसी मीडिया सोर्सेज से कि दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली इज द फर्स्ट वन जहाँ पे एसिड अटैक विक्टिम्स को हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट एंड DSLSA में दे हैव डेप्यूटेड, दे हैव अपॉइंटेड देम एज अ स्टाफ. हाई कोर्ट में काफी एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, वो आर वर्किंग एज अ स्टाफ. इवन इन आवर DLSA and DSLSA staff, some victims are acid attack victims, and they are doing wonderful job with the same sincerity and with the same enthusiasm. I think this is the things that I would like to share. Any questions? I was looking for questions also. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much for an enlightening, informative talk. We have a lot of questions, sir. Though Arvind ji has answered most of them, but I'll still like to ask you some of those questions. I have about good 15-20 questions that have come to me by now. So, sir, let's start with the questions. One of them is, we'll start with the last one, which actually is a very important aspect, I suppose. So one of the questions is, sir, what if the victim conceives after rape, becomes pregnant? Will she be awarded compensation along with medical charges for the abortion? Or will the compensation amount be given which the victim should use for the abortion? Thank you for reminding me this aspect. And participants, I would like to say thanks. अगर प्रेग्नेंट है, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर्स की मैं बात कर रहा था कि जिन फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं वाइल अवॉर्डिंग कंपनसेशन, उनमें से एक ये है कि अगर कोई विक्टिम
ऑफेंस की वजह से किसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से इन्फेक्ट हो जाती है, या HIV से इन्फेक्ट हो जाती है, या वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जो नई स्कीम है जिसमें पार्ट 2 में अगर कंपनसेशन है, अगर गर्ल्स प्रेग्नेंट हो जाती है और वो बेबी बोर्न होता है, तो देयर विल बी सेपरेट compensation for the baby also. Apart from medical health, the compensation will be, there will be separate compensation amount for the child born out of that offense, out of that conceive. And I would like to say one more thing: if the victim is minor, the amount of compensation may be more than 50%. Okay, thank you, sir. In So case the of next question is by Faiza Khanum. She asks, what are the provisions evolved under victimology for rehabilitation of the victim apart from compensation? apart from compensation, just I would like to share one thing कि एज सच रिहेबिलिटेशन के लिए जो हमारे सेंटर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट रन सेंटर्स हैं या प्राइवेट रन सेंटर्स हैं, वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, वी आर यूजिंग दो सेंटर्स फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ दोज विक्टिम्स. As such, there is no rehabilitation scheme in place, but we are using those centers for rehabilitation of the victims. Apart from compensation, as such, no rehabilitation scheme. Okay, sir. So thank you. So the next question that we have is that goes back to your initial talk where you said that prosecution witness को कोई prep कराने के लिए, prepare कराने के लिए नहीं होता है. So I suppose Vivek has asked this question, in which he wants to know कि सर ऐसा कोई possibility या ऐसी कोई scheme है कि जिससे किसी advocate को हर एक criminal court के साथ voluntarily attach किया जाए जो PW की preparation करा सके. I understand that LAC and PP साहब तो इस चीज के लिए होते हैं, but can the DLSA on its own, I suppose he wants to know, कि ऐसा कुछ कर सकती है कि PWs को भी वही help मिले जो एक accused को मिलती है with a good counsel? Really good idea to ponder over, to think over. Basically, this is practical. I am not saying theoretically there will be the NIPOT, there are NIPOT, there are PPs, but workload is so much कि आपकी कोर्ट में 10 से 12 गवाह लगे हुए हैं, प्रोसिक्यूशन को सभी गवाहों की गवाही करानी है, और कई बार एक कोर्ट की बजाय दो कोर्टें होती हैं, उसके अलावा उनको कन्विक्शन रिपोर्ट. आई एम सिंपली सेइंग कि प्रैक्टिकली विक्टिम्स को हम हेल्प नहीं कर पाते हैं एट द टाइम ऑफ टेस्टिमनी. दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ हार्ड रियलिटी. उसमें वी आर आल्सो विटनेस टू दैट कि जितना तैयारी अब डिफेंस विटनेस करके आता है, उतनी तैयारी का प्रोसिक्यूशन विटनेस नहीं आता है. Yes, sir. Sir, एक और question है, that is that in case of non-compliance of the free of cost medical facilities by the government hospital officials, तो IPC में ऐसे इसके लिए क्या provisions है उस non-compliance को punish करने के लिए? There is a provision in the judgment itself. The judgment itself says it amounts to criminal offense and that complaint can be filed against the hospital official and hospital official. Okay, sir. So the next question. In Lakshmi versus Union of India, it is clearly mentioned. Okay, and sir. Thank you. So it is incorporated in the CRPC also. Yes, sir. So the next question is कि untraced cases में अगर DLSA compensation देने से या payment देने से मना कर देता है, तो victim के पास क्या remedy है? अगर DLSA मान लीजिए हमारे पास कोई application आती है, we have to put up this application before the committee, that is the Delhi Victim Compensation Committee, District Victim Compensation Committee. अगर हम वहाँ उस कमेटी के सामने पुट अप करते हैं और कमेटी refuse to give the award the compensation, either it is the interim compensation or final compensation, और इस compensation के अगर उसको कुछ problem है, if they are not satisfied with the decline of the compensation or they are not satisfied with the amount of compensation, in both the cases they can approach the chairperson district legal service authority to the district judge, and who can revert back. This is not good. You have no right to decline and all of. That's fair enough. But I would like to share one thing. हम जनरली जो डिक्लाइन करते हैं वो हम इंटरिम कंपनसेशन डिक्लाइन करते हैं, मोर और लेस. एंड पर्टिकुलरली रेप केसेस आप देखेंगे कि रेप केसेस में बहुत सारे रेप केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे विटनेसेस होस्टाइल हो जाते हैं. अभी रिसेंटली जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस गाबाजी का एक जजमेंट भी आया था
जिसमें हमें डायरेक्शंस थी कि जब आप इंटरिम कंपनसेशन स्पेशली इन रेप केसेस आप देते हैं तो एटलीस्ट वेट फॉर द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम अनलेस एंड अनटिल देयर आर सम इमिनेंट एंड अर्जेंट नीड। दैट वाज पर्टिकुलरली फॉर रेप केसेस कि इंटरिम रिलीफ में एटलीस्ट क्योंकि विटनेसेस जब हॉस्टाइल हो गए देन देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिकवरी आल्सो, बट दैट इज वेरी कम्बरसम। अच्छा भी नहीं लगता कि आपने किसी को 50,000 रुपए दिए या 1 लाख रुपया दिया और फिर आप उसके खिलाफ रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल कर रहे हैं। गौरव ऑडिबल नहीं है, आवाज नहीं आ रही गौरव। सॉरी सर, अगला क्वेश्चन है पारुल शर्मा का। वो ये पूछती है कि अगर कन्विक्शन के बाद फ्रॉम द लोअर कोर्ट हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील डाल देते हैं, अक्यूज अपील डाल देता है, तो क्या फिर भी कॉम्पेंसेशन मिलेगा या वो स्टे हो जाएगा? देयर इज नो बार। ओके सर। नो बार इन एंड सर हमारे। एक, थैंक यू सर एक और क्वेश्चन पारुल से ही है। शी आस्क्स व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू एन अक्यूज्ड जिसको फॉल्सली रेप के अंदर चार्ज किया जाए? ऐसा कोई कॉम्पेंसेशन का प्रोविजन है टू अक्यूज? क्योंकि आजकल हम काफी केसेस देखते हैं। इनमें तो नहीं है, मतलब डीवीसीसी में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम में कहीं नहीं है। देयर इज नो सच प्रोविजन, बट ही कैन अप्रोच अदर रेमेडीज। यस सर, थैंक यू सर। आई विल गो ऑन टू द फर्दर क्वेश्चन सर। सर इसमें यह है कि अगर अक्यूज कोई फैमिली मेंबर है, जैसे कि फादर या ब्रदर, एंड ही इज अनएम्प्लॉयड, then how can you provide the compensation to the victim? If the accused is a family member. I kind of do not understand the question myself. It is a little mixed up. I would like to explain. Yes, मैं sir, आपको please. इंसिडेंट बताता हूँ कि हमारे एक एलएसी ने हमें रिपोर्ट किया कि उसके पास किसी हेल्प डेस्क पे या किसी लीगल सर्विसेज जो हमारे हेल्प डेस्क है वहाँ पे वो विक्टिम ने उसको अप्रोच किया और विक्टिम ने उसको ये बताया कि उसकी मदर इज इन्वॉल्व एंड समवन फ्रॉम नॉन समवन नॉन इज असोल्टिंग हर, सेक्सुअली असोल्टिंग हर रिपीटेडली। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने उस विक्टिम को बुलाया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या हम उस विक्टिम को वापस उसकी मदर के पास भेज सकते हैं? देन क्योंकि इट इज वी वर वेरी मच अवेयर कि मदर वाज इन्वॉल्व, मदर वाज वेरी मच अवेयर ऑफ द सेक्सुअल assault upon the daughter, and in that case we awarded her compensation and she was sent to the women center and all, and not to the mother. क्योंकि now the question of custody, क्योंकि माइनर केसेस में क्या होता है, माइनर के केस में अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट है जहाँ पे उसकी कस्टडी उसकी फैमिली के साथ सेफ नहीं है, तो चाइल्ड की कस्टडी का जो राइट है, चाइल्ड की कस्टडी को डिसाइड करने का जो राइट है, दैट इज विद द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, एंड नाउ इट इज अप टू द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वेदर custody is to be given to the centers or to the mother. Thank you, sir. सर एक नया क्वेश्चन है विराल भानुशली की तरफ से। उसका ये क्वेश्चन है कि अगर विक्टिम एक बच्चा है और अक्यूज भी बच्चा है, दोनों की लेट्स से उम्र 16 से 18 साल जुवेनाइल है और ऑफेंस हीनियस है, तो मैटर कहाँ लाए करेगा? जेजीबी में जाएगा, पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में जाएगा, कहाँ पे जाएगा ये केस? देखिए अभी जो बेसिकली जो चेंजेस आए, स्पेशली हम जिन चीज़ों से अब लड़ रहे हैं, तो सारी की सारी चीज़ें हमारी निर्भया के बाद स्टार्ट हुई। निर्भया केस के बाद जो क्रिमिनल लॉ में जो चेंजेस आया, ड्रास्टिक चेंजेस आए, इनमें से एक चेंजेस ये भी। मान लीजिए पॉक्सो एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से अगर हम देखें, मान लीजिए दोनों के दोनों माइनर हैं और दोनों कंसेंसुअल पार्टनर, both are minors, both the accused, both are accused basically, तो minor है and they are the consensual partner in sex। अगर आपने मुझे बेसिकली हीनस ऑफेंस के लिए पूछा था, accused and victim both are minor, Yes, sir. and offense is heinous offense. Yes, sir. Matter will go to the JJB. Okay. And as per the new provisions, अगर उनकी एज 16 to 18 है, अगर जो जुवेनाइल है, अगर उसकी एज 16 से 18 साल के बीच में है, the Yes, matter sir. JJB will make a summary inquiry. After conducting the inquiry, the JJB will decide whether this matter should be sent to the special court or whether this case should be treated, whether the person should be tried as an adult or as a juvenile. It is the duty of the JJB to decide after a summary inquiry. Okay, sir.
सर इसी का एक छोटा सा फॉलोअप क्वेश्चन है विदाल का ही, वो ये पूछता है कि एज अक्यूज्ड कैन नॉट गिव एनी कॉम्पनसेशन इफ कॉन्विक्टेड, देन इज द लीगल गार्डियन ऑफ दैट अक्यूज लायबल। इसी सिनेरियो में जहां दोनों जुवेनाइल्स हैं, तो क्या लीगल गार्डियन को लायबिलिटी आएगी? नो, थैंक यू सर। अभी तक कोई इस तरह का प्रोविजन नहीं है, लेकिन अभी जैसे वो जो मर्सिडीज का एक केस हुआ था हिट एंड रन का, यस सर। हिट एंड रन का नहीं था, मर्सिडीज में था, एक सीईओ की डेथ हुई थी, आई थिंक इन द सिविल लाइन। उसमें फादर के खिलाफ केस फाइल किया गया था। हाँ जी। मेड एक्यूज इन दैट केस कि इनके यू आर आल्सो रिस्पांसिबल कि आपने एक जो गाड़ी है एक माइनर बच्चे को चलाने के लिए दी। यस सर। सर थैंक यू। सर अगला एक क्वेश्चन हमारे पास और है, लास्ट फ्यू क्वेश्चन सर। अगर सर विक्टिम फॉरेन नेशनल है, तो ये जो हमारी कॉम्पनसेशन स्कीम है, क्या ये इस पे अप्लाई करती है? उस विक्टिम के लिए बेनिफिशियल है? यस, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम में अगर कोई फॉरेनर है और वो अगर विक्टिम है, उसके लिए अगर हम कंपनसेशन अवार्ड करते हैं, तो जनरली जैसे हमारी एफडी की स्कीम है, तो उनको हम एफडी नहीं कराते, क्योंकि एफडी जो होती है वो जो अकाउंट चाहिए विक्टिम का, वो चाहिए किसी नेशनलाइज बैंक में या किसी शेड्यूल्ड बैंक में। जो कंडीशन है कि जो अकाउंट होगा विक्टिम का, दैट अकाउंट शैल बी इन अ कमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक और नेशनलाइज बैंक। लेकिन जैसे यहाँ पे फॉरेन नेशनल है, तो वहाँ पे हम उन्हें कैश कार्ड देते हैं, नोट इन द अकाउंट, rather the compensation amount shall be given in the form of cash card. थैंक यू सर। सर नाउ राघव विल टेक अप अ फ्यू क्वेश्चंस जो हमें फेसबुक लाइव पे आए हैं। राघव, इफ यू कुड प्लीज टेक दोस क्वेश्चंस। Yeah, thank you so much, sir. And first of all, I would love to thank you, sir, and the participants who are making it interesting for us. And also, many of the advocates I see on FB Live are giving their inputs and also telling about they're actually writing the citations of each and every case that you have cited in your speech. So, I saw one of my LSE give the citation. very, very, very lovely Thanks, participants today. thank you, Sonal. Thank you all. Yeah, so sir, we have a question from Kirti Madan. What if a minor under the influence of her family has repeatedly filed false cases? What action can be taken for her family as well as for her? देखिए, false जो भी प्रोविजन है फॉल्स प्रोसिक्यूशन के लिए, क्योंकि if you are inciting someone, you are instigating someone to do something, then abetment is there. Okay. And the false prosecution के लिए all the provisions are available and they can be held liable for that. Even the family member can be held liable for that. Okay, thank you, sir. Then we have Yogesh Bhardwaj. He wants to ask, victim has got the interim compensation, but बाद में जाके जो victim है, he or she turns hostile. Then can DSLA or any other authority who had given the compensation recover the amount? Yeah, there is a provision of recovery. The witness turned hostile. And now question arises कि on what point she turned hostile. मान लीजिए विटनेस ये कहती है कि इंसिडेंट तो हुआ था, but this person has not committed the offense. This is a part hostile. She had admitted that she was victim of the offense, but this is not the person. In that case, she is still the victim. But otherwise, if she turned hostile, no offense has been committed. We are compensating the victim of crime. If crime has happened, we are not concerned with the conviction, acquittal, or discharge. If it is proved and the court is convinced and DLSA is convinced, yes, offense was committed and she is hostile on other aspects, then we are not required to go for recovery. If the witness is hostile to the fact that no offense has been committed, in that case we will go for recovery. There is a provision of recovery. Okay. Here I would like to say, मैंने initially इस बात को टच किया था कि 357 बात करता है कन्विक्शन की, 357 ये बात करता है any conclusion of trial. So either trial conclude in conviction, acquittal or discharge. अगर मान लीजिए एक्विटल करते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट पे, एक्विटल करते हैं इस ग्राउंड पे कि ऑफेंस वाज कमिटेड बट दिस पर्सन हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस, या डिस्चार्ज कर रहे हैं कि दिस देयर इज नो एविडेंस टू द फैक्ट दैट दिस पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस बट ऑफेंस वाज कमिटेड अगेंस्ट द विक्टिम. In such cases also recommendation can be made by the court. The court may recommend in acquittal, discharge also.
Okay. Yeah. Very elaboratively done, sir. Thank you. I hope this answers the question. So we have another question. You have already touched upon this concept, sir. When a baby is born out of rape, and the victim is given compensation. So Geet Gulzar wants to ask if what are the factors behind such compensation? What is the minimum and maximum of this, the limit of this compensation? Raghav, in the scheme itself it is mentioned कि अगर प्रेगनेंसी होती है तो या डिलीवरी होती है, अगर बेबी डिलीवर होता है तो दे विल बी separate provision of compensation for the child, for the upbringing of the child. And I already told कि in case of minors, the amount of compensation may be now up to 50%. मान लीजिए हम 3 लाख रुपए का compensation है, अगर माइनर है तो हम उसको 4.5 लाख रुपए का कर सकते हैं. Okay. Okay. So we also have Dayanand Damodar Mahajan, and he wants to ask that there's a case that he's involved in, supposedly, and he wants to ask that the minor that he's working for does not have a birth certificate. Is that mandatory in cases of compensation? If he's a victim, Yeah, he is the litigant for a victim, and she's a minor, and he wants to know if there's any other way other than birth certificate, because she does not have a birth certificate. if she's a minor and if she's a victim of sexual assault or rape, sorry, POCSO Act, then there will be a age inquiry. Age inquiry will be conducted, and the court will observe whether it's a case of whether she's a minor or not. In any other case, there are other documents which can be considered for the for the age of the victim. मान लीजिए पोक्सो केस में है माइनर, जैसे आप क्लेम कर रहे हैं कि माइनर है, तो दे विल बी एज इंक्वायरी इन द ट्रायल कोर्ट. द ट्रायल कोर्ट विल come to the conclusion whether she is a minor or not. Yes, Raghav. Raghav. The request might be frozen. So we'll just take 1 and 2 questions यहाँ से. एक नया question आया है शांतम अवस्थी की तरफ से. He asks कि अगर victim और accused दोनों सेम फैमिलीज हैं, लेट्स से भाई बहन हैं, और भाई गुस्से में किसी एनिमिटी में बहन पे एसिड फेंक देता है, so what are the repercussions or law around it? Does it remain the same या कुछ चेंज होगा? Throwing acid किसी भी तरह is an offense under section 326A. If you have intention, if you have knowledge, or if you have reason to believe that so and so act may cause grievous injury, then you are liable for 326A, and the repercussion will remain the same for accused as well as the victim. Okay, so thank you, sir, so much. We've done with all the questions. Gaurav, really thank you to the team, your firm, and all the organizers, and especially Gaurav, your team. You are wonderful. You are doing wonderful job in the lockdown period. Because this is the best thing that we can do for our legal fraternity, for even the litigant and public at large. Thank you, sir. From this, we can't do anything, and I'm really very grateful and thankful to you, and special thanks to Arvind also, because he recommended me to you and asked me to suggest a topic, and this is a topic close to my heart. And thank you for giving me a opportunity to interact with you all on this topic. Thank you, Gaurav. Thank you, Raghav, and thanks all the participants for sparing your time and having interaction and listening. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you for taking our time and joining us today and talking on such an important topic. We do have with us a public prosecutor from the Delhi government. I would just ask him that first question that I wanted to from the beginning of the session. So, जैसे पवन कुमार जी ने एक चीज बोली, रजत जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन कि जब प्रोसिक्यूशन विटनेस आता है उसको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है एंड प्रोसिक्यूशन के लिए इस सिस्टम में उतने प्रोविजंस नहीं है, तो सिंस आप डेली उस चीज से डील करते हो सर, रजत जी आपके क्या इस चीज पे व्यू हैं कि हम कैसे इस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट द प्रोसिक्यूशन विंग फेसेस? See, as you all know, जैसे सर ने बताया कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
और डिफेंस की तरह हम उनको तैयार नहीं कर सकते, बट स्टिल पर्सनली दोज थिंग्स व्हिच आई डू विद माय विटनेसेस, मैंने अपने नैपकोड को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, एज सुन एज द विटनेस विल कम वो उसको खुद बोल के बताएगा कि इसमें ये चीजें लिखी हुई हैं और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बतानी ही हैं जज साहब के सामने, पहली बात। दूसरी बात, जब भी मैं विटनेस को एग्जामिन करता हूँ, मैं बड़ी क्विक रेफरेंस से उससे 2-3 चीजें पूछता हूँ, जैसे कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था, गलती थी ना उसकी, और रैशन नेग्लिजेंटली चला रहा था, दूसरा तू पहचानता है ना वो सामने खड़ा है। ऐसी 2-3 मेन चीजें किसी भी ऑफेंस में, अगर सपोज करो कोई 323 का मैटर है, 324 का मैटर है, 341, 506, तो जो 2-3 बेसिक चीजें होती हैं, you can tell him to speak those things, those facts before the learned MM, so that you can secure the conviction or you can secure the justice. This is the way out. There is no other way out. Like, you cannot call the witness a day prior to the hearing, and you cannot tell him the facts कि कल को आपको कोर्ट में ये बोलना है. So basically हम डिफेंस काउंसिल को ज्यादा फायदा होता है, हमें आसान रहता है, हम अपने क्लाइंट को अक्यूज को 4 दिन पहले बुला के सब कुछ प्रिपेयर कराते हैं कि ये बोलना है नहीं बोलना है, बट somehow the prosecution does not have this facility. I fully agree with Rajat's limitations. I know Rajat, there are a lot of limitations, and within those limitations, prosecution is doing good. Despite those limitations, if you are doing good, that's a commendable job. Yes, sir. Of course, sir. Thank you so much, sir. And thank you for all the participants joining us. Just 2 quick announcements. We do have with us, since Mr. Arvind sir is there, I'll just announce he'll be doing another session after a very informative session he did with us last week on FIR. He'll also now talk about a few aspects of criminal trial in the coming week. We have a session tomorrow with Rajiv Vermani, senior advocate, on cross-examination and a strategy. He's building upon from the previous webinar that he did, that was affidavits in evidence. And we do have again Geeta Luthra ma'am on Friday on rape laws, its evolution in India, and what is the system lacking. Thank you, everyone. Thank you, all the participants. And thank you once again, sir, for taking out time today. Okay. I'll trouble you again in future for another topic for sure. Thank you, whole team. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.